Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Peshawar Model School Voice 3 in the online classes which were arranged for you to be connected with your study and your school. Today we are here in the online classes of class 5 and today is your second lesson of social studies. We were at lesson number 8, Pakistan and her neighbors, and it was there in your social studies books at page number 70. Before going to the new topic, first we will discuss something about the previous knowledge that what we had discussed in the starting of the chapter. So it was about Pakistan, that Pakistan is situated in the continent of Asia and it is sharing the border with different countries. This is the map of Pakistan in which you can easily see that which country is sharing a border with Pakistan in which direction. So here is Pakistan, and as we discussed in the previous class, that Iran is in the west of the Pakistan, sharing its border in the western side of Pakistan along a desert, Haran Desert, which also continue to the Iran, and the length of this border is 800 kilometer. Then moving from this western side and traveling to the northern side, we also have another country here, that is Afghanistan. Afghanistan is the northwest of the Pakistan and sharing its longest border with Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान का हमने कहा था सबसे जो लॉन्ग बॉर्डर है that is shared with the Afghanistan and it is in the northwest of the Pakistan. Then we have said that there is a 15-kilometer long track which separated Pakistan from the Central Asian states, from the Tajikistan. Then we come towards the northern part of the Pakistan. So in the northeast of Pakistan, this is the extreme north, and here is the Karakoram mountain range which form the border of Pakistan with China. ठीक है, ये हमने कहा था ये सारा हमारे पास कराकोरम माउंटेन रेंज है. ठीक है, जो हमारा बॉर्डर बनाता है हमारी नेबरिंग कंट्री दैट इज़ चाइना. ठीक है, देन further moving towards the east, in the east of Pakistan, this is the east of Pakistan, so here we have another neighboring country that is India. इंडिया है यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, जो कि ईस्ट से यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हमारे पास डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर की भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये है हमारा ये एरिया आज़ाद जम्मू कश्मीर है एंड दिस इज़ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जिस पर भी इंडिया का कब्ज़ा है. ठीक है, सो ये वो एरिया है, यहाँ से बॉर्डर इंडिया अपना शेयर करना स्टार्ट करता है. ठीक है, एंड इट्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, और यहाँ हमारे पास इंडिया का बॉर्डर साउथ तक आ जाता है. देन in the south of Pakistan there is no neighboring country. We have a large sea here, that is the Arabian Sea. In the south of Pakistan there is Arabian Sea, and there we also have a coastline in the south of Pakistan. As I told you that coast is the coastal areas are those areas which are near to the sea. So this is our coastline, the place, the area which we are sharing with the sea. So it is our coastal line in the south, and it is also 800 kilometer long. So we can say the length of this coastal line and the Iranian border is of the same, and we share 2200 kilometer of long border with the Afghanistan. Then we also discussed that Pakistan is stretched from the Arabian Sea from the south towards the north till the Tibetan plateau. और मैंने आपको बताया था कि तिब्बतियन प्लेटो क्या होता है,
a flat land above sea level, high flat land above sea level, and all the Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, they are the part of the Tibetan plateau. So पाकिस्तान को सिर्फ ये हमारी ये 15 किलोमीटर की जो लैंड है ये हमें तिब्बतियन प्लेटो से अलग कर देती है और सेंट्रल एशियन कंट्री से भी अलग कर देती है. देन इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान वी हैव ईरान, इन द नॉर्थ वेस्ट वी हैव अफगानिस्तान, इन द नॉर्थ ईस्ट we have China, and in the east we have India, and in the south of Pakistan we have no neighboring country, there we have the Arabian Sea. Okay, now coming towards the next chapter, now we will discuss the neighboring countries of Pakistan. ठीक है कि पाकिस्तान के ये जो हमने डिस्कस कर लिया था पाकिस्तान के फिज़िकल फीचर्स. ठीक है, अब हम आएंगे इनके नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ कि पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्री है उनकी लैंड कैसी है, देन व्हाट इज़ देयर लैंग्वेजेस, विच इज़ द कैपिटल सिटी. ठीक है, विच इज़ हिस्ट्री ऑफ दोज नेबरिंग कंट्री. जैसे पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, 1947 में बना था. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं, इट वाज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट. सो बिफोर दैट वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस. सो उसी तरह जैसे हमारी कुछ तारीख है तो इन नेबरिंग कंट्रीज़ की भी कुछ हिस्ट्री है. सो वी आल्सो हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज countries, about their surroundings, about their economy, that which things are grown there, and how is the people living there. So the first country that we will discuss is the Iran, which is in the western direction of Pakistan. In the west of Pakistan we have the neighboring country Iran. It is the flag of Iran, national flag of Iran. ठीक है, ये ईरान का नेशनल फ्लैग है. Okay, now Iran, like Pakistan, is an Islamic republic. ईरान भी पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक रिपब्लिक है. मुसलमान है वहाँ पे भी, ज़्यादातर इस्लामिक गवर्नमेंट है वहाँ पे. रिपब्लिक कहते हैं उस कंट्री को in which the people choose their government by their own will, according to their will, through voting. ठीक है, what is republic? It is a form of government in which the people decide to choose their government. ठीक है ना, जहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से अपने गवर्नमेंट चूज़ करते हैं थ्रू वोटिंग. जैसे पाकिस्तान में भी लोग जो है गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है पहले वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो पार्टी विन करती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है. सो उसी तरह ईरान में भी अब जो है इट इज़ कॉल्ड अ रिपब्लिक. एंड हाउ इट इज़ कॉल्ड अ रिपब्लिक? बिकॉज द पीपल इलेक्ट देयर लीडर थ्रू वोटिंग. ठीक है, वोट्स के ज़रिए वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं. जो पार्टी विन करती हैं वो आगे जाके गवर्नमेंट बनाने के काबिल होती है. Until 1935 ईरान was called पर्शिया. ईरान का जो पुराना नाम था 1935 से पहले तक, ठीक है, इट was called पर्शिया. इसको पर्शिया, फारिस जिसको उर्दू में कहते हैं, वो कहते थे. Then the Shah of that time changed the name and it became the Iran. ठीक है, Iran is a country of the deserts and plateaus surrounded by the mountains. Now which type of land is there in Iran? As Pakistan is having different contrast features of land. So which features of land Iran contain? अब ईरान की सरजमीन कैसी है? It is the map of Iran. ठीक है, ये हमारे पास ईरान का मैप है. Here you can say, as we have studied, that it is the land of deserts and plateaus surrounded by mountains. ठीक है, यहाँ पे deserts हैं, plateaus हैं जिनको surround किया है mountains ने. As we have discussed that
पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो डेजर्ट्स है, वहाँ पे खारान डेजर्ट है जो आगे कंटिन्यू होता है ईरान पे भी. सो इन दिस डायरेक्शन that desert is located, and here is another great desert, that is लुत desert, you can see. ठीक है, जो हमारी बुक में लिखा हो दश्ते लुत. सो इट इज़ दैट डेजर्ट. ये देखिए पूरा डेजर्ट एरिया है. देन हेयर इज़ द कावी डेजर्ट. यहाँ पे कावी डेजर्ट है. ठीक है, अब इनके इर्द गिर्द ये देखिए माउंटेन्स हैं, ज़ग्रोज माउंटेन्स, इट इज़ Elburz माउंटेन्स. ठीक है, एंड हेयर आर ऑल्सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी मशहद, अस्फहान. ठीक है, शिराज. देन द कैपिटल ऑफ ईरान इज़ तेहरान. जैसे हमारा कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, जहाँ से हमारी गवर्नमेंट रन करती है, बड़ी सारी एम्बेसीज़ है वहाँ पे, गवर्नमेंट हेड्स के जो ऑफिस हैं वो वहाँ पे हैं. उसी तरह ईरान का कैपिटल सिटी तेहरान है, फ्रॉम विच द government is ruled. It has a coastline in the north along the Caspian Sea and a coastline along the Gulf in the south. As we have a coastline in the south of Pakistan, जहाँ से हम अपनी ट्रेड करते हैं, सी के साथ अटैच होते हैं, जहाँ से ट्रेड होती हैं. So Iran share its coastline in two direction of the country. You can see here is the कैस्पियन सी. यहाँ पे हमारे पास कैस्पियन सी है इन द नॉर्थ, एंड इन द साउथ देयर इज़ द पर्शियन गल्फ. ठीक है, जिसको आप सिर्फ गल्फ भी कहते हैं. सो इट इज़ हेयर इट इज़ कॉल्ड द पर्शियन गल्फ. यहाँ पे जो सी है उसको पर्शियन गल्फ कहा जाता है, एंड हेयर इज़ द कैस्पियन सी. अब ईरान जो है नॉर्थ में अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है पर्शियन गल्फ के साथ, कैस्पियन सी के साथ, and in the south it is sharing the border with the coastline with the Persian Gulf. And the coastlines are very much important because all the trade depends on these coastline. ठीक है, जितनी हमारी कोस्टलाइंस होती है, लॉन्ग होती है, या कोई कंट्री कोस्टलाइन शेयर करता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग होती है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं दुनिया की सारी ट्रेडिंग जो है वो बाय सी होती है. ठीक है, जैसे हमारे कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, वहाँ पे सारी ट्रेड होती है पूरी दुनिया से. वहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं और आगे जाके चाइना को जो शिप्स ने जाना होता है वहाँ से सामान कार्गो होता है, एंड जो हमने दूसरी कंट्रीज़ को भिजवाना होता है या हमने मंगवाया होता है वो भी उन्हीं कोस्ट लाइन्स पे जो शिप्स आके रुकती हैं वहाँ से फिर आगे कार्गो होता है. सो देन दिस मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री. दिस एरिया हैज़ मोस्ट रेनफॉल एंड इज़ मोस्ट फर्टाइल. Now where the people of the Iran mostly live, as we said that in the north here is also mountains, and in the western side here is the deserts. ठीक है, कावी डेजर्ट भी है हमारे पास, यहाँ पे लुद डेजर्ट भी है. अब कहते हैं कि यहाँ पे जो नर्दर्न पार्ट है इसका और वेस्टर्न पार्ट है, इट हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, कंट्री के, बिकॉज इट इज़ द फर्टाइल एरिया ऑफ ईरान एंड इट हैज़ द मोस्ट रेनफॉल. जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, मट्टी भी ज़रखेज़ होगी, वो फर्टाइल लैंड होगा, वहाँ पे क्रॉप्स भी पैदा होंगी और ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे सेटल करेंगे. बिकॉज मोस्टली पीपल डू नॉट हैव सेटलमेंट्स इन द डेजर्ट्स एरिया or in the mountainous areas. So people prefer to live in the fertile plains. In Iran today there are Persian, Kurds, Armenians and Arab. Iran is an agricultural country. अब कहते हैं कि ईरान की पॉपुलेशन जो है वो कौन लोग बनाते हैं. जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे भी डिफरेंट लोग रहते हैं. आबादी लोगों की कौन सी है, यहाँ पे इंडियंस से जो इंडियंस हैं जो माइग्रेट करके आए थे 1947 में, वो भी रहते हैं. यहाँ पे अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी रहते हैं.
ठीक है। यहाँ पे कुछ उज़्बक लोग भी रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग आबाद हैं, ठीक है, उसी तरह ईरान की जो आबादी है दैट इज़ ऑल्सो कंपोज ऑफ डिफरेंट नेशन इन दैट द पर्शियंस, तुर्क्स जो तुर्की के लोग थे और वो बहुत पहले आके ईरान में आबाद हो चुके थे। द कुर्द्स, हु आर द कुर्द्स नाउ, दे आर द पीपल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान एंड तुर्की, ठीक है। ईरान और तुर्की के जो एरियाज़ हैं, आई थिंक हेयर द पीपल ऑफ दिस रीजन दे आर कॉल्ड तुर्क्स, सॉरी कुर्ड्स, द पीपल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न ईरान एंड द तुर्की दे आर कॉल्ड कुर्ड्स, उनको कुर्ड्स कहा जाता है। एंड द आर्मेनियंस, द पीपल ऑफ आर्मेनिया एंड अरब्स, ठीक है। और अरब, ये तमाम कौमें जो हैं ईरान का की आबादी बनाती हैं, पॉपुलेशन बनाती हैं। ईरान इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। नाउ व्हाट इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री? एग्रीकल्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज, द वन इज़ वी कैन से द इंडस्ट्रियल कंट्री एंड द अदर वी कैन से द एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर कंट्री वहाँ वो कंट्री होती है जिसकी आबादी जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से, ज़राअत से वाबस्ता हो, अपनी अर्निंग जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी करके फसलों की पैदावार से हासिल करते हैं अपनी आमदनी में। और जिस मुल्क की जो इकॉनमी है, जो मुल्क का जो पैसा है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल साइड, ठीक है। जिस मुल्क की इकॉनमी जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल साइट पे डिपेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडस्ट्रियल कंट्री वो होती है जिसकी अर्निंग जो है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ से हासिल होती है, ठीक है। जो कंट्री जिससे अपनी इनकम हासिल करते हैं वो एक एग्रीकल्चर से, दैट इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चरल कंट्री। But since there is not much rainfall, much of its food has to be imported. लेकिन यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इनकी जो ज़्यादातर फूड आइटम्स हैं they also import. Import means to buy from other countries, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में हमारी ज़रूरत की अगर कोई चीज़ नहीं पाई जाती, so we buy them from other countries. That is called the import of a country. But some items, some food items also grow there, and these are wheat, rice, tobacco, fruit, sugar beet and tea are grown here, ठीक है। लेकिन वहाँ भी एग्रीकल्चरल कंट्री है, फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ भी कुछ क्रॉप ज़ाहिर बातें ग्रो करती हैं। उनमें वीट है, गंदम है, चावल है, राइस है, टोबैको है, तंबाकू, फ्रूट्स हैं डिफरेंट, शुगर बीट है एंड टी है। शुगर बीट चुकंदर जिसको कहते हैं, एंड टी और चाय जो है वो उन इलाकों में पैदा होती है। These are the crops which are grown in Iran. It is the wheat, it is the sugar beet, ठीक है, it is tobacco and it is the tea, ठीक है। गंदम है ये हमारे पास टी की क्रॉप है, चाय, it is the sugar beet and this is the tobacco. These crops are grown in Iran in the fertile areas of the northwest of Iran. Now livestock farmers rear sheep and goats. Livestock farmers, those farmers who rear animals for the profit and domestic use, ठीक है। वो जैसे हमने पिछले चैप्टर में स्कूल में भी डिस्कस किया था एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में, that livestock is the animals which we raise for the domestic use or for the profit, कि या तो हम उनको घरों में अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, पालते हैं, या फिर उसको हम बड़े लार्ज फॉर्म की सूरत में पालते हैं फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम उनको बड़े बड़े फॉर्म्स में पालते हैं, उनका दूध बेचते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो भी बेची जाती है, ठीक है। उनकी जो मीट है, गोश्त है, उनसे हासिल किया जाता है। सो द इरानियन फार्मर्स रेयर शीप्स एंड गोट्स, वो भेड़ पालते हैं और बकरियां पालते हैं। एंड दे ऑल्सो अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर
skin, their wool, and from their milk. So Iran has now coming towards the next. Iran has 10% of the world's oil reserves and has also a natural gas. Now it is the oil reserves of the Iran. Oil, जैसे हम जानते हैं, it is the most important, you can say, mineral nowadays. All the world's economy are running because of the oil reserves found in the world. How all the factories are using the power, electricity, which is generated by burning of oil and gas. All the vehicles are running in the world by using the petroleum, which is the purified form of the oil. ठीक है, गाड़ियाँ जो है हमारी सारी पेट्रोल पे चलती हैं या गैस पे चलती हैं. ठीक है, हमारी बिजली की पैदावार ऑयल और गैस से होती है. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नाउ इन द वर्ल्ड. एंड ईरान हैज़, दुनिया में जितना भी तेल दरियाफ्त हो चुका है उसका 10% जो है दैट इज़ फाउंड इन द ईरान. सो इट मीन्स दैट ईरान हैव अ लॉट ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड. अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये वो जगह होती हैं जहाँ पे ऑयल या गैस जो है फाउंड आउट होता है. ठीक है, और फिर उसको आगे मशीन्स के ज़रिए, देखिए इन मशीन्स के ज़रिए इसको ड्रिल किया जाता है, निकाला जाता है और आगे जो है पाइपलाइंस की सूरत में गैस को सप्लाई किया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो द मिनरल्स विच आर फाउंड इन द ईरान. ओके, इट इज़ द कॉपर, इट इज़ द आयरन और कॉपर, जिसको हम तांबा कहते हैं. ठीक है, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल वर्ड्स में आपको, या इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं उसमें आपको मिलती हैं गोल्डन कलर की वायर्स जो होती हैं, दैट इज़ द कॉपर. ठीक है, विच इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ द आयरन ओर. ये हमारे पास जो रॉ फॉर्म में, जो प्योर फॉर्म में आयरन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द आयरन ओर. लोहा जिसको हम कहते हैं, इट इज़ लेड. And these are the precious stones found in the Iran. Gemstones जिसको हम कहते हैं, कीमती पत्थर. ठीक है, they are also found in the Iran. Then another most important is the which Iran is famous all over the world for its magnificent Persian carpets. ठीक है, ईरानी कारपेट जिसको हम भी कहते हैं, ईरानी कालीन बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं. सो ये वो ईरानी कालीन हैं जो ज़्यादातर हाथ से बुने जाते हैं और प्योर वुल से बुने जाते हैं. जो हमने कहा कि फार्मर्स जो है वहाँ पे वो शीप्स को ज़्यादातर पालते हैं. तो वो क्यों पालते हैं, उनसे ऊन हासिल करते हैं. जैसे हम अपने लिए जब कुर्बानी के दिनों में आपने देखा होगा, जब भेड़ वगैरह लोग लेके आती हैं, ठीक है, उसके ऊपर बाल होते हैं. उन बालों को ये विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद स्प्रिंग जब स्टार्ट होता है, ठीक है, उनको हटा देते हैं, उनसे वुल हासिल किया जाता है, जो कि आगे जाके उसको प्योर किया जाता है, साफ़ किया जाता है और फिर आगे जाके उससे धागा बना के ईरानियन कारपेट्स बनाए जाते हैं या फिर वार्म क्लोथ्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. सो ईरान इज़ फेमस फॉर इट्स carpets all over the world. Iran also have a rich history. It is known for the culture, literature and architecture. ईरान का जो कल्चर है, जो वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट्स होते हैं, जहाँ लोग जैसे रहते हैं, it is also very famous as the Nowruz festival of Iran. It is also very known and famous. लिटरेचर कहते हैं, जो हमारी पोइट्री होती है, जो हमारी नॉवेल्स होते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड द लिटरेचर. ठीक है, जैसे गुलिस्तान सादी है ईरान की, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके तर्जमे किए जाते हैं. ठीक है, और उनको पढ़ा जाता है. एंड द आर्किटेक्चर मीन्स द way to design the or construct the building. So the architecture of Iran is also very famous. You can see here the different mosque. It is the Sheikh
लतीफ़ुल्लाह मस्जिद इन द अस्फ़हान। ठीक है, आपने देखा होगा जो इस्लामी तर्ज़ तामीर है उसमें हाथ से जो है कशीदा कारी की जाती है। ठीक है, हाथ से उसमें तमाम डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। पत्थरों को आपने ब्लू टाइल्स का यूज़ जो है ये भी बहुत ज़्यादा देखा होगा जो हमारे है यहाँ पे। इसके अलावा लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है इस्लामिक जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द आर्किटेक्चर, मुस्लिम और इस्लामिक आर्किटेक्चर इन द होल वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आपको ये आर्किटेक्चरल साइट्स मिलेंगी। फॉर वेरी अर्ली टाइम्स ईरान वॉज रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टी। अब हमने इससे पहले ईरान की जो लैंड है उसको डिस्कस किया। ठीक है, दैट इट इज़ द लैंड ऑफ द माउंटेन्स, प्लेटोज एंड डेजर्ट। ठीक है, एंड it has shared the coastal line in the north with the Caspian Sea and in the south with the Persian Gulf. Then coming towards the people of Iran that who make the population of Iran, so the Persian, Turks, Kurds and Armenians make the population, and Arabs make the population of the Iran. Then we discuss about the land that it is an agricultural country and wheat, rice, tobacco and fruits and tea are grown there, and farmers rear sheep and goats. Then about the reservoirs of the Iran, that which kinds of reservoirs are there in Iran. So it has 10% of the oil and gas, natural gas reservoirs of the world, and there are minerals, copper, iron और लेड एंड प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, मिनरल्स कहते हैं जो उन चीज़ों को जो कि ज़मीन को या पहाड़ों को माइनिंग करके या ज़मीन को खोद के उसके अंदर से निकाले जाते हैं। दे आर कॉल्ड द मिनरल्स। देन वी से दैट इट इज़ नोन फॉर इट्स ईरानी कारपेट्स and it has also a rich history, Islamic rich history, and it is also known for their architecture and literature. Now coming towards the history of the Iran, so here it is written that it was ruled by different dynasty, मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ के अंदर इसको रूल किया गया है, इस पे हुकूमत की गई है मुख्तलिफ बादशाहों ने। जैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके हुकूमत करते थे, गज़नवीद भी आए, होरीस भी आए, फिर यहाँ पे मुग़ल्स भी आए। सो उसी तरह हमारे पास ईरान पे भी बहुत सारे लोगों ने हुकूमत की। डायनेस्टीज़ कहते हैं बादशाहत को। इन मोर रिसेंट ईयर्स इट हैड अ रूलर कॉल्ड शाह। ठीक है, इन मोर रिसेंट ईयर, अगर हम अब की कुछ अरसे पहले की या कुछ साल पहले की बात की जाए, सो ईरान पे शाह हुकूमत करते थे, और उनमें जो उनका लास्ट था शाह था, हिज नेम वॉज रज़ा पहलवी, उसका नाम था रज़ा पहलवी। इट इज़ द पिक्चर ऑफ रज़ा पहलवी हु वॉज द लास्ट शाह ऑफ ईरान। ठीक है, अभी जो 20th सेंचुरी में जो रूल करते थे ईरान पे जो लोग, उनको शाह कहते थे, और उसमें रज़ा पहलवी जो था वो उसका आखिरी शाह था। ठीक है, देन इन 1970s वेरियस ग्रुप्स यूनाइटेड अंडर द एग्जाइल लीडर्स आयतुल्लाह ख़ुमैनी। अब 1970 में बहुत सारे ग्रुप्स जो थे वो जिला वतन जो उनका रूलर था आयतुल्लाह ख़ुमैनी, उनके अंडर इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? बिकॉज दे वांट शाह टू लीव द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ईरान के जो लोग थे वो उस वक्त के जो शाह थे रज़ा पहलवी, उससे नाखुश थे। वाई? बिकॉज ही वांट टू वेस्टर्नाइज हिज कंट्री। ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को वेस्टर्नाइज़ किया, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होने की तरफ वो चले गए थे। और बहुत सारे कहा जाता है कि उस वक्त के जो रिफॉर्म्स वो लेके आया था, इस्लाहात जो लेके आया था, वो इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ थे। ठीक है, जो उसने बहुत सारे कवानीन मुल्क में लागू करने की कोशिश की थी, इस्लाहात की थी, वो इस्लामिक टीचिंग से बहुत ज़्यादा हट के थी। सो उस वजह से भी लोग जो थे वो उसके नाखुश थे। ठीक है, और इसके अलावा कहा जाता है कि उस वक्त इन्फ्लेशन रेट, महंगाई जो थी वो भी ईरान में बहुत ज़्यादा हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बेरोज़गारी हो गई थी, महंगाई ईरान में बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो लोग उस वक्त के रूलर से जो थे वो तंग थे।
जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में आजकल भी लोग जो है बहुत सारे जो हमारे अपोजिशन है वो जलसे कर रहे हैं हुकूमत को हटाने के लिए। जैसे इमरान खान ने पहले धरना दिया था, ठीक है, नवाज़ हुकूमत को हटाने के लिए। सो उसी वक्त उसी तरह जो है ईरान में भी जो शाह था उस वक्त का, रज़ा पहलवी, उसको हटाने के लिए लोग जो थे वो प्रोसेशंस की सूरत में, जलसों की सूरत में बाहर निकल आते थे, जुलूस की सूरत में, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो थे वो नारे लगाते थे और डिमांड्स करते थे कि रज़ा पहलवी जो है वो हुकूमत छोड़ के चले जाएं और ये हमारे मुल्क में जो कवानीन या इस्लाहात लेके आ रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, मैंने आपको कहा एक तो कवानीन जो थी वो इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ को लेके आ रहा था, दूसरी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी उसके दौर में बहुत ज़्यादा हो गई थी। सब लोग जो थे वो तंग आ गए थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ वो निकल आए थे बाहर, सड़कों पे उन्होंने जलसे जुलूस जो है वो निकालना स्टार्ट कर दिए थे। और अब उनका दूसरा वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर रहा था, यानी मगरबी तर्ज पे अपने मुल्क को लेके जा रहा था। सो वहाँ पे जो रिलीजियस ग्रुप थे, ठीक है ना, जो मज़हबी ग्रुप थे वहाँ पे, उन्होंने भी रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ जो है वो भी निकल आए थे उन प्रोसेशंस में। इसके अलावा जो मदारिस के बच्चे थे, जो अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स का, नौजवान तबका था, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, वो भी बाहर उसके ख़िलाफ़ निकल आए थे, और वो सब एक लीडर के अंडर जो थे वो यूनाइट हुए थे, एंड द लीडर वाज कॉल्ड आयतुल्लाह खुमैनी। ठीक है, आयतुल्लाह खुमैनी जो था वो रिलीजियस लीडर था, मज़हबी रहनुमा था उस वक्त, ठीक है, जिसको भी हुकूमत से इख्तिलाफ़ात थे, उसको पहले जो था वो नज़रबंद भी किया गया था, जेल में भी डाला गया था, फिर उसको मुल्क बदर भी किया गया था, लेकिन फिर वो 90 जो था वो जब वो रिहा हुआ, वापस आया, तो उसने जो है इस जो प्रोसेशंस थी उसको हेड किया आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने 1970 में। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट शाह वॉज फोर्स टू लीव द कंट्री 1979। देखिए 70 में ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, और फिर 79 में जो था बहुत ज़्यादा, जब मुसलसल तकरीबन 9-10 साल बनते हैं, ठीक है, जब ये सारा प्रोसेशंस और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग बाहर निकलते थे, सो इन 10 सालों में ईरान में जो थे लोग, उन्होंने आखिर में रज़ा पहलवी को मजबूर कर दिया था कि वो जो है गवर्नमेंट छोड़ दे, और उसको पहले कहा जाता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स चला गया था, और उसके बाद जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी निकल के इजिप्ट चला गया था, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। सो ही लेफ्ट द गवर्नमेंट इन 1979 एंड आयतुल्लाह खुमैनी टुक ओवर द गवर्नमेंट इन एन इस्लामिक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, ठीक है, जब आप नए सिरे से सारा कुछ पुराना जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होता और आप नए सिरे से अपने मुल्क में तमाम कवानीन नाफिज करना चाह रहे हो, सो दैट वाज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। एंड आयतुल्लाह खुमैनी जो रेवोल्यूशन लेके आए थे, दैट वाज कॉल्ड द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1979। ठीक है, क्या हुआ था, जो शाह थे रज़ा पहलवी, वो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज करना चाहते थे, और वो जो टीचिंग्स या इस्लाहात लेके आ रहे थे, जो कवानीन लेके आए थे, दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग्स। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी कंट्री में। उसकी वजह से लोग जो थे वो शाह रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए थे अंडर द आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इट इज़ द पिक्चर ऑफ द आयतुल्लाह खुमैनी। ये हमारे वो सारे प्रोसेशंस हैं, वो जलसे हैं, जुलूस हैं, जो उस वक्त उसके ख़िलाफ़ लोग इकट्ठे होते थे आयतुल्लाह खुमैनी के। देखिए आपने उनकी पिक्चर्स भी उठाई हुई है। दिस इज़ द मैन कॉल्ड आयतुल्लाह खुमैनी, ठीक है। सो देन दे स्टार्ट द गवर्नमेंट in Iran. The capital of Iran, as I told you, it is Tehran, and the national language is Persian और फ़ारसी, जिसको कहा जाता है उर्दू में हम कहते हैं फ़ारसी। पॉपुलेशन जो है ईरान की वो 70.5 मिलियन है। इट वॉज द ईरान
Now coming towards the next country, that is Afghanistan. It is in the northwest of Pakistan. ठीक है, it is the flag of Afghanistan. It is the map of Afghanistan. You can see it is the northwestern border of Pakistan और ये हमारा पूरा अफ़गानिस्तान है. ठीक है. Afghanistan is a mountainous country. It is written Afghanistan is a mountainous country. It has cold winter and summer season is hot and dry. अफ़गानिस्तान जो है माउंटेनियस एरिया है ज़्यादातर और इसमें शदीद किस्म की सर्दी होती है. ठीक है, बर्फ़ पड़ती है पूरी कंट्री में मोस्टली और समर सीज़न जो है वो हॉट होता है, गर्म होता है और ड्राई होता है. द पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ मेड अप ऑफ मिक्स ग्रुप्स सच एज पर्शियन, उज़्बक्स एंड ताजिक्स. अब जैसे पॉपुलेशन बनाई थी ईरान की पर्शियंस ने, तुर्क्स ने, कुर्द्स ने, उसी तरह अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें पश्तून्स भी हैं, उज़्बक्स भी हैं जो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं, वहाँ सेटल हैं, और ताजिक्स हैं जो ताजिकिस्तान के लोग हैं और वहाँ पे रहते हैं. सो दे मेड द पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान. और ये देखें अफ़गानिस्तान इज़ अ माउंटेनियस एरिया. सो इट इज़ द सफ़ेद को रेंज ऑफ माउंटेन्स. इट इज़ द हिंदू कश माउंटेन्स. ठीक है, ये देखें तुर्किस्तान माउंटेन्स हैं यहाँ पे. सो इट इज़ द पामीर माउंटेन्स, नौशाक पीक जो हमारी चित्राल में है. सो दे आर शेयरिंग different parts of the country, the mountains of the Afghanistan. Because of its central position, travelers have passed through this land for thousands of years. अब इसकी जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान की वो ऐसी है कि यहाँ पे ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी रास्ता देता है. ठीक है, साउथ एशिया में इंटर होने को. ये देखिए ईरान है, यहाँ पे तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है. सो ये जो हमारे पास और फिर ईरान के ज़रिए ये आगे जाके ठीक है यूरोप से कनेक्ट हो जाता है. सो द पोजीशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, लोकेशन जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे ट्रैवलर्स जो थे, सफ़र करने वाले लोग होते थे, जो ट्रेडर्स थे, वो इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करके खैबर पास के ज़रिए, हिंदू कश माउंटेन्स के ज़रिए पाकिस्तान में एंटर होते थे. जो बहुत सारी इन्वेजन जो पाकिस्तान में हुई सब कॉन्टिनेंट में, वो इसी खैबर पास को, हिंदू कश की पहाड़ियों को अफ़गानिस्तान के रास्ते ही जो है वो हुई थी. सो ऑल मेजर रूट्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट पास थ्रू अफ़गानिस्तान. और जितने भी हमारे रास्ते हैं जो सब कॉन्टिनेंट को मिडल ईस्ट से मिलाते हैं, ठीक है, ईरान से, इजिप्ट से या सेंट्रल एशिया से भी मिलाते हैं. सो दे आर फ्रॉम अफ़गानिस्तान को पास करके हमारे रास्ते जो है वो इन कंट्रीज़ को जाते हैं. ठीक है, यहाँ से हम पास अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके इन कंट्रीज़ की तरफ जा सकेंगे. In 30th century, Afghanistan was a part of the empire of the great Mongol ruler Genghis Khan. अब अफ़गानिस्तान को भी मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ में रूल किया गया है, मुख्तलिफ़ लोगों ने वहाँ आके रूल किया है. और 30th सेंचुरी में जो था अफ़गानिस्तान, वो मंगोल सल्तनत जो थी उसका जो रूलर था चंगेज़ ख़ान, वो इसको रूल कर रहा था. ठीक है, इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री आफ्टर अहमद शाह दुरानी इन 1747. लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने यहाँ पे आके हुकूमत की और उसमें इसके बाद जो था, जो दुरानी थे, जिसमें अहमद शाह दुरानी जो था, वो इसने इस कंट्री को एक पावरफुल का स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया इन 1747 एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश. लेकिन दुरानी इसके बाद जो है ये कंट्री दोबारा से ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल चली गई. द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान डिफीटेड द ब्रिटिश एंड बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन 1921. अब वहाँ पे जो ब्रिटिश आके हुकूमत करते थे उनको भी वहाँ पे अफ़गान ने सेटल होने नहीं दिया. दे वर द वॉरियर्स, दे आर द स्ट्रॉन्ग पीपल, दे डू नॉट लेट देयर कंट्री टू बी गवर्न बाय द आउटसाइडर्स. ठीक है ना, वो अफ़गानिस्तान में जितने भी आउटसाइडर्स आए, अफ़गान के जो लोग थे, उन्होंने उनको शिकस्त दी. ठीक है, और अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया, अपने मुल्क को किसी भी आउटसाइडर से कंट्रोल होने नहीं दिया. दुरानीस के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स को भी अफ़गान जो वॉरियर्स थे उन्होंने 1920
1971 में अपने मुल्क से निकाल दिया और अफ़गान जो था अफ़गानिस्तान इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। द रशियन ऑल्सो शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस रीजन। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ अफ़गानिस्तान रशिया का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जो उस वक्त की दो सुपर पावर थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया। ये 1950 से जो हम कहते हैं 70 या 80 तक यहाँ पे कोल्ड वॉर लड़ी गई। ताकत के लिए जो जंग थी दुनिया में वो जारी थी बिटवीन द रशिया एंड यूएसए। दोनों जो थे वो जो अपनी इकॉनमी थी उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, अपनी तिजारत को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, ठीक है। सो रशिया ने अफ़गानिस्तान में अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में जो था अफ़गानिस्तान के ज़रिए अटैक करके वो अरेबियन सी तक या तक रसाई हासिल करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि ईरान जो आपने देखा है उसके साथ जो आर्टिक रीजन है वो ज़्यादातर कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे कोई या कुछ महीनों के लिए वहाँ पे वाटर जो है फ्लो करता है, बट द ट्रेड इज़ नॉट पॉसिबल देयर। सो फॉर ए ट्रेड, क्योंकि दुनिया की तमाम तर तिजारत जो है वो बाय सी होती है। सो टू ऑक्युपाइड द सी दे अटैक द अफ़गानिस्तान। और उसके बाद उनका प्लान था कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे और यहाँ से जो है अरेबियन सी का कंट्रोल हासिल कर लेंगे एंड दे विल बूस्ट अप देयर ट्रेड। So Russia also showed a great interest in this region. In 1979, the USSR occupied Afghanistan for 10 years. There was unrest and the war as the Afghan fought against the Russia. ठीक है, 1979 में यहाँ पे रशिया जो है अपने ट्रुप्स को भेजते हैं, ठीक है। इट इज़ द अहमद शाह दुरानी। ये देखिए रशियन यूएसएसआर के जो ट्रुप्स हैं वो टैंक्स में और इनकी जो आर्मी थी वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई, उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया। और इसके पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा वजह ये बताई थी कि अफ़गानिस्तान के उस वक्त के जो गवर्नमेंट के हालात थे वो भी ख़राब थे, ठीक है। जैसे ईरान में जो थे लोगों ने इस्लाहात जो थी वो इस्लाम की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ नाफिज करना स्टार्ट कर दी थी। सो उसी तरह अफ़गानिस्तान में भी जो है वो जो गवर्नमेंट के कवानीन थे वो इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ जा रहे थे। इसलिए जो वहाँ पे मुजाहिदीन थे, जो तालिबान ग्रुप्स था वहाँ पे, उन्होंने अफ़गान हुकूमत के साथ वो लड़ना स्टार्ट हो गए थे। एंड बिकॉज ऑफ दोज अनरेस्ट विद इन द कंट्री द रशियन ट्रुप्स इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। और फिर उसके बाद जो थे बहुत सारे लोग, जब उस कंट्री में जंग शुरू हुई, वहाँ का वो थ्रू आउट द कंट्री वो जंग शुरू हुई, बहुत से लोग वहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हो गए थे। और वहाँ रशिया ट्रुप्स के आने के बाद रिफ्यूजीज़ बन गए थे, यानी महाजिर बन गए थे। एंड दे मूव टूवर्ड पाकिस्तान एंड ईरान मोस्टली। बहुत सारे लोगों ने जो था वो महाजिर बन गए थे। जैसे आपने पाकिस्तान में भी अफ़गान महाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद देखी है। तो ये उसी वक्त 1979 की बात है जब वहाँ पे जंग स्टार्ट हुई थी रशिया की। तो लोग जो थे बेसर व सामान जो थे आके रहना स्टार्ट हो गए थे पाकिस्तान में, क्योंकि इसका बॉर्डर शेयर होता है और दूसरा बॉर्डर इसका ईरान के साथ शेयर होता है। सो बहुत सारे लोगों ने ईरान और अफ़गानिस्तान में आके पनाह ले ली थी, मूव कर गए थे हेयर। देन तकरीबन 10 साल के बाद, ठीक है ना, 1979 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी और 1989 द कंट्री रशियन बिगन टू विड्रॉल, ठीक है ना। अफ़गान के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने वहाँ उनको शिकस्त दे दी थी और वो अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए थे। टुडे अफ़गानिस्तान इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ द ट्रबल इन द लैंड, स्पेशली आफ्टर सितंबर 2001 के बाद भी जो थी यहाँ पे ये ठीक है 2001 से पहले अफ़गान जो था वो इंडिपेंडेंट कंट्री था। लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक है, द अटैक ऑफ द 9/11, सो उस वक्त कहा जाता है कि अमेरिका ने फिर इल्ज़ाम ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, ठीक है,
और अमेरिका ने इसका जो इल्ज़ाम था वो अफ़गान मुजाहिदीन पे, तालिबान पे लगा दिया था। और उसी को बहाना बना के यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएसए ने सितंबर 2001 को जो था वो अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था। दे सेंड देयर ट्रुप्स इन द अफ़गानिस्तान। ये देखिए उन्होंने लैंड किए थे अपने फौजी जो थे, जो नेटो फोर्सेस थे, यूएसए की जो फोर्सेस थी, दे लैंड टूवर्ड्स द अफ़गानिस्तान। और उसके नतीजे में भी बहुत सारे लोग जो अफ़गानिस्तान में थे वो दोबारा पाकिस्तान में, ये देखिए, रिफ्यूजीज़ बन के, महाजिर बन के आ गए थे। इनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे कैंप्स का इंतज़ाम किया था और ये इस कैंप्स में आके रहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान में सेटल्ड होना स्टार्ट हो गए थे। देन कमिंग आफ्टर द लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल एंड द लैंड देयर, ठीक है, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग जो थे, जो वहाँ के मुजाहिदीन थे, तालिबान थे, उन्होंने जैसे पहले रशिया को शिकस्त दी थी और रशिया भी वहाँ छोड़ के सरेंडर करके चला गया था। सो उसी तरह अमेरिकन जो ट्रुप्स थे उनको भी वहाँ पे मुकम्मल फ़तह नहीं हुई, ठीक है। और इसीलिए अभी भी आपने इस साल में देखा होगा तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके यूएसए वहाँ से अपनी अफवाज जो है वो निकाल रही हैं, ठीक है। और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है वो उसकी अपनी गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हैं। The country has suffered a lot of the destruction and damage. Many Afghan left the country because of the fighting in 1980s and again after 2001. Hundreds of thousands came into live in Pakistan. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में आके रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। Before the Russian invasion and the following wars, Afghanistan was a progressive country with many schools and universities. It was also नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल, कारपेट्स एंड एक्सीलेंट फ्रूट्स, ठीक है। ये इसकी अफ़गान की टेक्सटाइल है जो अब रैपिडली ग्रो कर रही है अपनी वुलन प्रोडक्शन के लिए, क्लोथ्स के लिए, उसकी फैक्ट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा नोन होता था, जाना जाता था। फिर यहाँ पे यही जो कारपेट्स होते हैं जो एनिमल वुल से तैयार किए जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स देयर, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। Then there is also natural gas in Afghanistan and the capital of Afghanistan is Kabul. The national language is Persian or Dari Persian, Pashto or Dari Persian, and the total population of the Afghanistan is 32 million people living there. So it was our lecture or class for today, Iran and Afghanistan. Hope you will understand.